Joint venture. When two or more firms join together to establish a new enterprise, then it is known as joint venture. तो अगर दो फर्म्स इकट्ठा आ रही है, एक साथ आ रही है और वो बिजनेस करना चाहती है, then it is called as joint venture. The two firms contribute capital and participate in the management of the enterprise. तो न सिर्फ वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है, बट वो मैनेजमेंट भी देखेंगी उस पर्टिकुलर वेंचर का. In simple words, you can say that joint venture is a partnership between two firms. तो joint venture क्या है? एक पार्टनरशिप की तरह ही है. Okay. Firms of same country as well as firms of two different countries can join together to form joint venture. For example, Tata Iron and Steel joined hand with IPCOL, a government enterprise, to promote IPI Tata, Sponge Iron Limited, etc. Then Tungabhadra Industries Limited of India and Yamaha Motor Company of Japan joined together to form Birla Yamaha. And Maruti Company of India and Suzuki Company of Japan joined together to form Maruti Suzuki India Limited. So this is how collaboration is done, but they are doing business by collaborating and they are continuing in this name. So this is called as joint venture. जो हमने पहले देखा वो कोलैबोरेशन अलग था, वो जस्ट पर्टिकुलर एम के लिए था, लाइक एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो. तो उसमें एक छोटा सा ही पार्ट वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था एंड दैट इज हेंस इट इज कॉल्ड एज कोलैबोरेशन. बट यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे बिजनेस पूरी तरह से रन करने के लिए फ्रॉम डे वन दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर से प्रॉमिसिंग ईच अदर दैट दे विल बी टुगेदर फॉर अनलिमिटेड पीरियड. तो वो जॉइंट वेंचर तरीके से ही कंपनी को रन कर रहे हैं and they are managing it that way only. So it is not just a small collaboration, rather it is a big collaboration, you can say, and it will continue for years to come. Then features of joint venture: increase resources and capacity. In joint venture, companies get larger resources, financial as well as human, enabling the company to grow and expand more quickly and efficiently. Obviously, जब दो countries की companies एक साथ आ रही है, naturally बहुत कुछ उनका एक साथ आ रहा है. सो नॉट जस्ट देयर मैन पावर इज कमिंग टुगेदर, बट देयर टेक्निकल नो हाउ इज ऑल्सो कमिंग टुगेदर, देयर मैनेजरियल स्किल्स आर ऑल्सो बीइंग पूल्ड. सो ये सब कुछ जब इकट्ठा आ रहा है तो फंड्स भी इकट्ठा आ रहे हैं. सो ये सब कुछ टेकन टुगेदर, नेचुरली दे आर गोइंग टू डू बिजनेस नाइसली. दे विल हैव इंक्रीज्ड रिसोर्सेज ऑल्सो एंड इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑल्सो. ओके. Then is access to new market and distribution networks. When a business enters into joint venture, it can access new markets. For example, when foreign companies form the joint venture in India, they get access to vast Indian market. They can also take the advantage of retail outlets in different local markets. अब naturally जब two companies इकट्ठा आके business कर रही है as a joint venture, so not just for production etc. तो वो production के लिए, management के लिए या funds के लिए इकट्ठा आ ही रहे, एक साथ आ रहे हैं, but वो न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी उनको अवेलेबल हो जाएंगी. जैसे इफ दे आर हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी और इंडिया एज वन ऑफ द पार्टनर इन दैट, देन इन दैट केस इंडियन मार्केट विल बी अवेलेबल फॉर देम. ऑब्वियसली दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और promote their products in India as well or in Indian markets as well. Then access to technology. Advanced techniques of production leads to superior quality of products and reduced cost of production. It saves lots of time, energy and investment because they do not have to develop their own technology. For example, by joining hands with company of developed nation, the companies can get benefits of advanced technology. When they are joining hands, say for technology, अगर technology ही उनका main aim है, क्योंकि we need technology and other companies having that, so let us have the joint venture with that company. तो यहाँ पे advanced technology उनको मिल रही है. तो जब advanced technology मिल रही है तो naturally advanced techniques of production होंगे. Production will be with the advanced technology. तो naturally जब production अच्छा है तो superior quality होगी, increased production होगा क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी हुई होगी. नेचुरली इट विल बी मोर एंड हेंस व्हेन जब अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी भी अच्छी हो रही है प्रोडक्शन की, तो एट दैट टाइम नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस. सो ये एक बेनिफिट है बिकॉज दे आर गेटिंग द एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी. सो व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस, दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग द लॉट ऑफ टाइम इन दैट. सो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इट इज टाइम सेविंग फॉर देम ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और गेटिंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पे कॉस्ट भी सेव हो रहा है, टाइम एंड एफर्ट्स भी सेव हो रहे हैं, एनर्जी सेव हो रही है.
एंड इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कह सकते हैं कि सेव हो रही है या फ्रूटफुल हो रही है, इट इज गेनिंग रिटर्न्स। देन इज इनोवेशन। Joint ventures help businesses to come up with the new and innovative products for their markets because of new ideas and technology of foreign partners. तो joint ventures जब होते हैं तब अलग अलग कंट्रीज में जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ है या इवन कल्चर्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, तो उस हिसाब से उनको न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे और उस हिसाब से वो अप्लाई करेंगे। दोज इनोवेटिव टेक्निक्स एंड आइडियाज विल बी अप्लाइड इन ऑल द कंट्रीज to extend their market और spread their market share. इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, हमारी जो वॉशिंग मशीन्स हैं, वर्लपूल है या कोई भी और कंपनी है, आई नो अबाउट वर्लपूल क्योंकि मैंने इसका केस स्टडी अच्छे से पढ़ा है। वर्लपूल जो कंपनी है ना, उसके यहाँ पे जो मॉडल्स हैं वो सेम मॉडल्स आर नॉट यूज इन अदर कंट्रीज, बिकॉज हो सकता है अदर कंट्रीज का एक तो क्लाइमेट अलग है, फिर वहाँ का वेदर भी अलग होता है, वेदर एंड क्लाइमेट देयर इज स्लाइट डिफरेंस, तो वो तो अलग होता ही है, या उनकी नेसेसिटीज भी अलग है। हमारे यहाँ पे कैसे है, द मशीन शुड वॉश देन इट शुड रिंस, एंड अगर मतलब जल्दी रिंस करना है या ज़्यादा रिंस करना है तो आजकल शायद उसमें वो हॉट ट्रीटमेंट वाला आ गया है ना, हॉट स्टीम इज पास ऑन, तो जैसे आयरनिंग के लिए रेडी है या इवन आयर्न हो गया, ऐसा ही कुछ निकलेगा बाहर। तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज नीड या अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द कंट्री। तो वहाँ पे जो सिटीजन्स है उनकी क्या नेसेसिटीज़ है या उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंगली दीज प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड। तो उनके वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन का मॉडल सेल हो रहा है वो इंडिया में नहीं चल रहा है, या इंडिया में जो ज़रूरत है वॉशिंग मशीन के मॉडल की वो वहाँ पे नहीं बेचा जा रहा है। इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, द मॉडल्स विच आर सोल्ड इन इंडिया एंड नॉट जस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन आई वुड से, बट इवन अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग है या किसी और कंट्री के रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। सो अकॉर्डिंगली दे हैव दोज इनोवेटिव आइडियाज एंड दे अप्लाई फॉर ईच कंट्री और अदर कंट्रीज ऑल्सो। तो अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट चला है तो कभी न कभी यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट आ सकता है, क्योंकि सूनर और लेटर वी ऑल आर गोइंग टू हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड व्हेन वी आर हैविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मे बी वी आर गोइंग फॉर सच जॉब्स एक्सेट्रा। तो जब घर में वो ज़रूरत होगी तो नेचुरली वहाँ पे तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा है, तो मे बी कभी ना कभी वो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में भी आएगा। सो सच इनोवेटिव आइडियाज may be practiced in some countries and sooner or later they may be coming to other countries also. Then low cost of production. When international companies merge with Indian company, they get immense benefit due to lower cost of production because of low cost of raw material, labor, management professionals, chartered accountants, engineers, scientists, etc. See, these companies, MNCs, they merge with the Indian companies, they get the benefit of low cost of production बिकॉज लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कम है, लेबर इजीली अवेलेबल है, सो लेबर कॉस्ट भी कम है, सो नेचुरली उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम होगा या होता ही है। सो प्रॉफिट मार्जिन जनरली ज़्यादा ही होती है, और हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स है वो भी अच्छे हैं, स्किल्ड है, सो ये दे आर गेटिंग द डबल एडवांटेज वी वुड से, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है, मटीरियल कॉस्ट कम है, एंड स्किल्स यहाँ पे अच्छे हैं, प्रोफेशनल है यहाँ पे, so they are getting more and more profits. Then is established brand name. Established brand name, when two firms enter into joint venture of the party, one of the party benefits from the other's goodwill which is already established in the market. A lot of investment is saved in this process. There is ready market waiting for the product to be launched. Then we can say कि जब ब्रांड नेम शेयर हो रहा है, जॉइंट वेंचर है, दो कंपनीज एक साथ आ रही है, किसी एक कंपनी का तो बहुत अच्छा गुडविल होगा, तो नेचुरली वो ब्रांड नेम के अंडर उनको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे या उनके सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड नेम। सो दिस इज हाउ अ ब्रांड नेम ऑल्सो इंक्रीजेज द बिजनेस, एंड हेंस जॉइंट वेंचर्स भी उस हिसाब से भी बनते हैं कि चलो उनका नेम की वजह से ही हमें फ़ायदा हो जाए। सो येस, गुडविल विल ऑल्सो अर्न द मार्केट फ्रॉम फॉर देम। Then let us understand public-private partnership. Public-private partnership describes a government service or private business venture which is funded or operated through a partnership of government and one or more private sector companies. These schemes are also referred to as P3 or PPP or P3 again. That is P cube बोलेंगे पहले को. Okay. For example, hospital building financed and constructed by private developer and then leased to hospital authority.
or the private company acts as a landlord and provides housekeeping services and other non-medical services, whereas hospital services are provided by the hospital authority, that is government. तो यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप होगी। ये तीनों ही वर्ड्स पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए पी 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 ऐसा बोल रहे हैं। ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट विद दिस अब्रीविएशन ओनली, या 3P ऐसा भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट भी एक पार्टनर होगा उसमें, और प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनीज भी इसमें पार्टनर होंगी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट। सो दे मे कम टुगेदर एंड डू सर्टन टाइप ऑफ बिजनेस। सो लेट अस अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ दिस 3P. Contract between public and private parties. It is a contract between the public sector authority and private sector authority, in which the private party provides public service and bears financial, technical and operational risk. यहाँ पे क्या होता है, it is a contract between these two, that is the public sector and the private party. तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, सबसे पहले तो रिस्क जो होगी, रिस्क विल बी टेकन बाय द प्राइवेट पार्टी। एंड कौन सी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, टेक्निकल रिस्क हो सकती है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकती है। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम टू बेयर दिस रिस्क। देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सर्विस. In some types of PPP, the cost of using service is borne by the users of services and not by the taxpayers. And in some, the cost of providing services is borne wholly or partly by government. तो accordingly contract में होगा कि कौन cost bear कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं एंड यूजर्स है वो भी हो सकते हैं। तो कौन एक्चुअली वो कॉस्ट बेयर कर रहा है एंड किसके ऊपर वो कॉस्ट पास ऑन हो रहा है। सो दैट मे बी डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। Then provision of capital subsidy. Projects that aim in creating the public goods in infrastructure sector, the government may provide a capital subsidy in the form of one-time grant to make it more attractive to the private sector. In some cases, the government may provide revenue subsidy, including tax breaks, by providing guaranteed annual revenue. अभी कैपिटल सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे भी ये पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स पहले से दे देती है, या सब्सिडीज या कंसेशंस पहले से अनाउंस कर देती है। जैसे वन टाइम ग्रांट उन्होंने दे दी गवर्नमेंट ने, तो इट इज़ अट्रैक्टिव कि पहला जो सारा इनिशियल खर्चा है वो सारा गवर्नमेंट दे रही है, एंड देयर आफ्टर मे बी द प्राइवेट विल टेक ओवर ऑल दीज एक्सपेंसेस। तो प्राइवेट वालों के लिए ये एक अट्रैक्टिव वेंचर हो जाता है, एंड सो देयर कैन बी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट entrepreneurship in this. Then pertaining to high priority projects and public welfare. Now this is suitable for the high priority projects, that is infrastructure sector, etc. It is also used in the government projects targeted at public welfare, that is Delhi Metro Rail Corporation, etc. तो ये जो प्रोजेक्ट्स है पब्लिक एंड प्राइवेट वेलफेयर के ऊपर एक्चुअली ध्यान देंगे। एक तो उसमें हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स ही होंगे जो गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, हाई प्रायोरिटी रखते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में खुद अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही है तो इट इज़ गोइंग टू गिव थिंग्स, इट इज़ गोइंग टू असाइन दीज थिंग्स और डेलीगेट दीज थिंग्स टू द प्राइवेट पीपल, ओके, बाय मेकिंग इट इनिशियली अट्रैक्टिव। वो इनिशियल फंड्स ग्रांट कर देंगे उस प्रोजेक्ट को, बट वो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट जो है हो सकता है अगर गवर्नमेंट कर रही है तो इट विल टेक मेनी ईयर्स, बट इफ इट इज असाइंड टू और डेलीगेटेड टू द प्राइवेट पीपल, हो सकता है वो क्वालिटी भी अच्छी दे पाए और जल्दी भी कंप्लीट कर पाए। सो यस, दिस इज इन द पब्लिक वेलफेयर। देन शेयरिंग ऑफ इनकम और रेवेन्यू. The revenue of these is shared between the government as well as private in an agreed ratio. तो उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, उसी रेशियो में इनका इनकम या रेवेन्यू शेयर हो जाएगा between public and private, that is government and private. Then the problems with these PPP. The main problem with these are that private investors obtain a rate of return that was higher than the government bond rate, even though most of the income risk is borne by the public sector. तो यहाँ पे कौन सी रिस्क है? They are saying that the return was higher than the government bond. तो ऐसा है कि उन्होंने जो भी बॉन्ड करके रखा होगा, एग्रीमेंट करके रखी होगी, उसमें कुछ जो रेट लिखा होगा वो हो सकता है अलग है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है वो रेट में चेंज हो जाए. देयर इज अ रिस्क, एंड वी नो कि इन्फ्लेशन होता जाता है तो एक्चुअल उनको अमाउंट जो हाथ में पड़ती है वो डिफरेंट हो सकती है, या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लैग हो जाए तो वो बाद में मिला हुआ पैसा भी इट इज़ एज गुड एज रिड्यूस्ड मनी.
बिकॉज टाइम वैल्यू होती है मनी में. सो इफ इट इज रिसीव्ड लेट, ऑब्वियसली हम उतना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं. सो यू कैन से दैट दिस इज अ प्रॉब्लम बिटवीन देम. तो उनका जो बॉन्डिंग रेट है वो डिफरेंट हो सकता है एंड रिस्क बेयरिंग भी उस हिसाब से डिफरेंट हो सकती है.